make record investments in emerging technologies and American manufacturing. We used to invest almost 2% of our GDP in research and development. We don't now. China is. Let me give you one example why it's so important to pass. If you travel 20 miles east of Columbus, Ohio, you'll find 1,000 empty acres of land. It won't look like much, but if you stop and look closely, you'll see a field of dreams, the ground on which America's future will be built. That's where Intel, the American company that helped build Silicon Valley, is going to build a $20 billion semiconductor megasite, up to 8 state-of-the-art factories in one place, 10,000 new jobs. And in those factories, the average job about $135,000 a year. Some of the most sophisticated manufacturing in the world to make computer chips the size of a fingertip, that power the world in everyday lives, from smartphones, technology to the internet, technology that's yet to be invented. But that's just the beginning. Intel CEO Pat Gelsinger, who is here tonight, I don't know where Pat is. Pat, there you go, Pat, stand up. Pat came to see me, and he told me they're ready to increase their investment from $20 billion to $100 billion. That would be the biggest investment in manufacturing in American history. And all they're waiting for is for you to pass this bill. So let's not wait any longer. Send it to my desk, I'll sign it, and we'll really take off in a big way. And folks, Intel is not alone. There's something happening in America. Just look around and you'll see an amazing story. The rebirth of pride that comes from stamping products made in America. The revitalization of American manufacturing. Companies are choosing to build new factories here when just a few years ago they would have gone overseas. That's what's happening. Ford is investing $11 billion in electric vehicles, creating 11,000 jobs across the country. GM is making the largest investment in its history, $7 billion to build electric vehicles, creating 4,000 jobs in Michigan. All told, 369,000 new manufacturing jobs were created in America last year alone. Folks, powered by people I've met like JoJo Burgess from generations of union steelworkers in Pittsburgh, who's here tonight. Where are you, JoJo? There you go. Thanks, buddy. As Ohio Senator Sherrod Brown says, it's time to bury the label Rust Belt. It's time to see what used to be called the Rust Belt become the home of a significant resurgence of manufacturing. And with all the bright spots in our economy, record job growth, higher wages, too many families are struggling to keep up with their bills. Inflation is robbing them of gains they thought otherwise they would be able to feel. I get it. That's why my top priority is getting prices under control. Look, our economy roared back faster than almost anyone predicted. But the pandemic meant that businesses had a hard time hiring enough people because of the pandemic to keep up production in their factories. So you didn't have people making those beams that went into buildings because they were out. The factory was closed. The panic also disrupted the global supply chain. Factories close. When that happens, it takes longer to make goods and get them to the warehouses, to the stores, and prices go up. Look at cars last year. 1/3 of all the inflation was because of automobile sales. There weren't enough semiconductors to make all the cars that people wanted to buy. And guess what? Prices of automobiles went way up, especially used vehicles as well. And so we have a choice.
One way to fight inflation is to drive down wages and make Americans poorer. I think I have a better idea to fight inflation. Lower your costs, not your wages. Folks, that means make more cars and semiconductors in America, more infrastructure and innovation in America, more goods moving faster and cheaper in America, more jobs where you can earn a good living in America. Instead of relying on foreign supply chains, let's make it in America. Look. स्टेट ऑफ द यूनियन को एड्रेस कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और रूस पर इस बार फोकस रहा इस संबोधन के दौरान। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज विधानसभा की कार्यवाही आज भी जारी रहेगी और आज कार्यवाही के दौरान बजट पर चर्चा होगी। पारित हो सकता है नकल विरोधी बिल भी आज। बड़ी खबर इस वक्त की यूक्रेन मामले पर भी सरकार का जवाब आज आ सकता है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज क्या कुछ रहेगा वो आपको बता रहे हैं हम। बजट पर तो चर्चा होगी, साथ ही नकल विरोधी बिल भी आज पारित हो सकता है और यूक्रेन मामले पर भी सरकार का जवाब आ सकता है। बता दें आपको, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूक्रेन में फंसे हुए राजस्थानी छात्रों के लिए, भारतीयों के लिए कह भी रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित जल्द से जल्द वापस लाया जाए। प्रधानमंत्री को उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी राजस्थान के छात्रों के लिए कि उन्हें जल्द से जल्द और सुरक्षित राजस्थान वापस लाया जाए, और आज इस पर जवाब भी, यूक्रेन मामले पर सरकार का जवाब भी आज आ सकता है। बड़ी खबर। होटल चलाना है तो हर महीने 50,000 रंगदारी देनी होगी, और रंगदारी देने से मना किया तो अंजाम क्या होगा, ये इन सीसीटीवी फुटेज में देखिए। बेखौफ बदमाशों की तस्वीरें कोटपुतली की है, जहां बदमाशों ने रंगदारी की खातिर पहले 3 होटल वालों को धमकाया और फिर होटल के अंदर और बाहर फायरिंग कर दी। इस समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम गठित की है। पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बाइक से उतर के आए, एक जना बाइक के ऊपर वहां खड़ा था, वो आए और उनसे मैंने पूछा, हाँ भैया बोलो, तो बोले कि तुम्हें होटल चलाना हम सिखाते हैं अभी। तो फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ निकाला, निकालने के बाद में उन्होंने एक लेटर फेंका, फिर उन्होंने सीधी गन मेरे ऊपर लगा दी और बोले कि महीने कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। सारी टीम ने, समस्त टीम ने ये तीनों मौके विजिट किए हैं और कुछ लीड्स हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। इसमें तीव्र कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी और बहुत ही कठोर सख्त कार्रवाई इसमें अंजाम में लाई जाएगी। हमें लीड्स मिली हैं जिनको डेवलप किया जाएगा। मरुधरा के करीब 5 लाख किसानों का एक इंतजार अब खत्म होने वाला है। अलग बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों को सीएम गहलोत के ऐलान के बाद एक उम्मीद बंधी है। सरकार ने 2 साल के अंदर आवेदन करने वाले सभी किसानों को बिजली कनेक्शन देने का वादा किया है। किसानों का बिजली कनेक्शन का इंतजार कि 2012 से लगाकर आज 22 हो गया है। 22 तक 4 लाख किसानों के कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। आज तक मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? किसान को 2 साल में आप कैसे कनेक्शन पूरे कर देंगे? सीएम ने बजट भाषण में खेती के लिए बिजली का कनेक्शन लेने वाले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया, तो वैसे करीब 5 लाख किसानों की उम्मीद फिर से जगी है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की माने तो घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के साथ ही किसानों का साल 2012 के दिसंबर से चल रहा बिजली कनेक्शन का इंतजार अब गहलोत सरकार आने वाले 2 साल में खत्म करने जा रही है। तो राजस्थान में दिसंबर 2012 तक के किसानों के कृषि कनेक्शन अभी तक हुए हैं
मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान के तमाम आज तक की जो पेंडेंसी है उसमें जितने भी किसानों के लंबित कृषि कनेक्शन है वो सारे कृषि कनेक्शन आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हमारी सरकार के द्वारा किसानों को दिए जाएंगे। हालांकि अगर किसानों को बिजली कनेक्शन की अगर हकीकत देखें तो ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। गहलोत सरकार ने बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। 22 फरवरी 2022 तक आवेदन करने वालों को 2 साल में मिलेगा कृषि कनेक्शन। साल 2012 से कृषि कनेक्शन के लिए किसान इंतजार कर रहे हैं। करीब 5 लाख किसान कृषि कनेक्शन के लिए कतार में हैं। वहीं दिन के वक्त बिजली देने की किसानों की सालों पुरानी मांग को लेकर भी गहलोत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान के 17 जिलों में आने वाले 2 सालों में हम जो अभी तक जिन जिलों में दिन में बिजली नहीं दी जा रही है तो उन 17 जिलों में भी आने वाले 2 साल के अंदर अंदर किसानों को दिन में बिजली देने का काम किया जाएगा। हालांकि गहलोत सरकार किसानों की जरूरी समस्या को सुलझाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन किसान बिजली कनेक्शन के लिए मध्य प्रदेश मॉडल को प्रदेश में अपनाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को भी मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर किसानों को कृषि कनेक्शन पर राहत देनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर 6 महीने में एक बार बिल आए और एक यूनिट फिक्स कर दी जाए, एक दाम फिक्स कर दिया जाए। मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, मनमानी पेनल्टियां लगाई जा रही है। बहरहाल केंद्र हो या राज्य सरकार, किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करने में कोई भी पीछे नहीं है, लेकिन किसानों को कभी खाद, कभी बीज और कभी बिजली के लिए कतारों में लगना पड़ता है। अब बजट में राजस्थान के किसानों की दशा सुधारने के लिए जो कदम उठाने के दावे हुए हैं, क्या वो वक्त पर पूरे होंगे? अन्नदाता को अब इसका इंतजार है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीजेपी आजीवन सहयोग निधि अभियान के जरिए पार्टी का खजाना भर रही है, लेकिन कांग्रेस इसे बैकडोर से काले धन को सफेद करने का अभियान बता रही है। जालौर जिले से जब पार्टी को 68 लाख का सहयोग निधि का चेक मिला तो बीजेपी और कांग्रेस में फिर से जबानी जंग शुरू हो गई। देखिए, पार्टी हमारी स्वावलंबी बने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर अभियान पर आर पार। भारतीय जनता पार्टी समान निधि के नाम पे नोटबंदी के दौरान जो काला धन एकत्रित किया था उसे सफेद में बदलने का प्रयास कर रही है। 26 दिसंबर 2021 से शुरू हुए बीजेपी के आजीवन सहयोग निधि अभियान में जालोर के अंशदान से बीजेपी का जोश हाई है। जालोर जिले से 68 लाख का अंशदान का चेक मिला तो इससे गदगद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इसे पूरे मरुधरा के लिए प्रेरणा स्रोत बताकर इसे और आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि एक जिले से 68 लाख की रकम कैसे जुटाई जा सकती है। होती है 100 रुपए से लेकर जिसकी जैसी श्रद्धा है वो इसमें अंशदान करता है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उसमें अपना अंशदान दिया। मैं जालोर की इकाई को बधाई दूंगा कि अभी तक प्रदेश में सर्वाधिक उन्होंने अंशदान किया। जालोर जिले में 68 लाख रुपए एकत्रित करने का जो दावा कर रहे हैं, 2000 से ज्यादा किसी भी राजनीतिक दल को नगद के तौर पे नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब 34 लाख लोगों ने ये समान निधि दी हो। बीजेपी इस अभियान के तहत राजस्थान में 30 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुकी है और इसे 100 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखती है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लोगों पर दबाव डालकर या पर्दे के पीछे से जैसे भी हो पैसा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से काले धन को सफेद करने का कार्य किया जा रहा है। कोष जुटा रहे हैं, पैसा जुटा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दबाव डाल करके लोगों से पैसा लिया जा रहा है। इसी प्रकार से पहले राम मंदिर के नाम पर भी पैसा लिया गया था जिसका कोई हिसाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किस माध्यम से किससे पैसा ले रही है लेकिन सच ये भी है कि कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण कार्यकर्ता भी पार्टी से अपना जुड़ाव महसूस करता है
और पार्टी का मकसद भी छोटी छोटी रकम के जरिए पार्टी के फंड को मजबूत बनाना है। सहयोग निधि के सफल अभियान के जरिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पार्टी में अपनी पकड़ को भी मजबूत करना चाहते हैं। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजू के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया है जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। नमस्कार and welcome to Byju's Young Genius Season 2। Byju's Young Genius न्यूज़ 18 की एक पहल इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की। The world turns to our sun to power our future. I'm Vinisha Umashankar. I'm 15 years old. I'm the innovator of the solar ironing cart. Please welcome the former coach of the Indian men's cricket team, ace commentator and a man who I have great respect for, Ravi Shastri. How are you? Genius? I'm really great. Hi, Betty. This is Vinisha Umashankar, हमारी young genius. I read her speech, glimpses of it. I saw it when she was there for the COP26. The way she spoke, no stage fright whatsoever. Many, many congratulations. You know what she did there? People keep talking about the future. She brought the future to the present. Fabulous. Thank you so much. And I think that's a really nice way to put that. Bringing the future into the present. हमारे अगले जीनियस बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। सितार वादन में सबसे प्रसिद्ध घरानों में से एक जयपुर सेनिया घराने के चश्मो चिराग सितार में महारत हासिल कर चुके हैं। अपने घराने की शान बढ़ाते ये हैं दिल्ली से अधिराज चौधरी। मेरा नाम है अधिराज चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। फिलहाल इतने, दीजिए इजाजत। नमस्कार।